Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome again in the lecture of class 2nd, subject English Grammar. Today I am taking the next lesson, that is lesson 10, is RM. This is your lecture 1 and this is your lesson 10 in your PC Ren's grammar book. In the previous lecture, we have read about lesson 9. हमने lesson 9 पढ़ा जो कि क्या था? Action words. और lesson 10 में आप linking verbs के बारे में जानेंगे. Those linking verbs are is, are and am. I hope all of you understand about the verbs. Now, today I am going to tell you about is, are, am. आपने एक्शन वर्ड्स के बारे में, क्रिया के बारे में जाना. अब आप सहायक वर्ब्स के बारे में जानेंगे जो कि is, are, am हैं. Let's proceed. These words are called helping words or we can say linking words. जो आप is, are, am यूज़ करेंगे उनको हम helping verb भी बोलते हैं और linking word भी बोलते हैं because ये sentence complete करने में help करते हैं और two words को link कर एक sentence की form बनाते हैं. Basically, we use is, are or am with present tense and according to singular and plural. ज़्यादातर आप is, are और am का प्रयोग present tense में करते हैं और is, are, am को आप singular और plural के according use करते हैं. I will tell you all these things in the next slide. मैं अगली स्लाइड में आपको ये सब बताऊंगी. Let me show you how to use. First of all, let me show you a table. मैं आप लोगों को यूज़ करना सिखाऊंगी is, are, am का. उससे पहले मैं आपको एक टेबल शो करूंगी. So, let's see the table. चलिए अब हम टेबल देखते हैं. Now, here is the table. You can very well see I, we, they, he, she, Jubin, Tanaz. I, we, they, these, he, she, these are pronouns and Zubin and Tanaz are naming words, so they are noun. And with them you use the linking verbs am, are, is. And these are the objects. I am taking as a object is student. So when we use singular, जब हम singular use करेंगे तो student होगा and when we are using with plural तो आपका s आ जाएगा students. So let's make the sentences with the help of this table. I, बच्चे I के साथ हम हमेशा am का use करते हैं. I am a student because I जो है वो सिंगुलर है तो आप यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे. You will write I am a student. Now we is plural. we के साथ are आएगा and students. we plural है तो we के साथ are आएगा. जो भी प्लूरल होगा उसके साथ क्या आएगा? are. We are students. they are students. अब आपको खुद ही क्लियर हो गया होगा कि they क्या है. they सिंगुलर है या प्लूरल? बच्चे they भी प्लूरल है. जहाँ भी are का आप यूज़ करोगे वो प्लूरल हो जाता है. प्लूरल मीन्स many. ओके एंड सिंगुलर मीन्स ओनली वन. जब आप एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर और जब आप एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल. नाउ
these. The children are students. You can write these are students or you can write the children are student, because children shows many, the number is many over here. बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो आर आएगा. These are students. He is a student. He क्या है? Singular, and with singular we use is. He is a student. She is a student. She के साथ भी student आया. Now Jubin and Tanaz both of are naming words and they are nouns. आपने अभी तक जो किए वो क्या थे? Pronouns. देखिए हम यहाँ nouns और pronouns को भी recall कर रहे हैं, तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है कि I, we, they, these, he, she क्या है? Pronouns. जुबीन और तनाज क्या है? Nouns. So naming word के साथ भी आप इसका प्रयोग करेंगे. Zubin is a student, Tanaz is a student. I hope you understand with the help of the table कि I के साथ am, we, they, these के साथ are, he, she, it और naming word के साथ भी is आएगा. Now you can see an exercise which is given in your book. Fill in the blanks with is, am or are. I dash Rahul. I dash a student of city public school. Vani dash my sister, class and classmate. We dash twins. Our parents dash very caring. So this is exercise 1 which is given in your book. In exercise 1, B part, C part, D part and E part are given and you have to fill is, are, am accordingly. जैसा कि मैंने आपको बताया कि I के साथ am, we, you, they, these के साथ आप are और he, she, it के साथ आप is fill करेंगे. So you have to take care while filling these particular fill in the blanks. Now let's see the solution of this exercise which you have to do in the book, and before doing आप पहले इसको अच्छे से समझेंगे. Exercise 1, fill in the blanks with is, am, are. हमें क्या भरना है? fill in the blanks में is, am, are fill करना है. So first one, I dash Rahul. am, you very well know I के साथ am आएगा. I am Rahul. I am student of city public school. Full stop. So आपने क्या देखा यहाँ? I के साथ am fill करेंगे आप. Then Vani is my sister and classmate. वानी मेरी बहन है और मेरी क्लासमेट भी है, मेरी सहपाठी, मेरी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की है. We are twins. हम दोनों क्या हैं? ट्विन्स, यानी कि जुड़वा. अब वी आ गया तो वी के साथ आर आया एंड नेमिंग वर्ड वानी के साथ इज आया. अवर पेरेंट्स आर केयरिंग. हमारे पेरेंट्स हमारा बहुत ध्यान रखते हैं. पेरेंट्स क्योंकि दो हैं, ओके, देर आर 2 persons, सो आर. अवर पेरेंट्स आर केयरिंग. नाउ बी पार्ट, यू आर अ स्टूडेंट. यू के साथ क्या आता है? आर. वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, यू के साथ आपने आर ही फिल करना है. यू आर अ स्टूडेंट. यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड. तुम क्लास सेकंड के स्टूडेंट हो. सो आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली आर जो है वो सेकंड पर्सन के साथ आता है और यू क्या है? सेकंड पर्सन. आपको बच्चे सिर्फ यही रिमेंबर रखना है कि यू के साथ भी आर आएगा, बिकॉज अदर रूल्स विल कम इन नेक्स्ट क्लास. रीता एंड सिया आर ऑल्सो स्टूडेंट्स. रीता और सिया भी क्या है? स्टूडेंट्स. दे आर 2 इन नंबर, तो क्या आ गया? आर.
दे आर सिस्टर्स, वो दोनों क्या है, सिस्टर्स. नाउ सी पार्ट. दिस इज सोहम, ही इज रेहाज ब्रदर. यह सोहम है और वह क्या है, रेहा का ब्रदर. रेहा इज अ गुड गर्ल. रेहा क्या है, एक अच्छी लड़की. शी इज वेरी हेल्पफुल. वो बहुत ही सहायक है, यानी कि हर काम में वो बहुत सहायता करती है. अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में 2 पर्सन्स की बात कर रहे हैं हम. सोहम एंड रेहा, 2 बच्चे हो गए. आर सिबलिंग्स, इसीलिए यहाँ क्या आ गया, आर. सिबलिंग्स यानी भाई बहन है. सोहन और रेहा दोनों क्या हैं, भाई बहन. नाउ वी आर इन ग्रीन हाउस. हम कहाँ हैं, ग्रीन हाउस में. विधि इज अवर हाउस कैप्टन. विधि क्या है, हमारी हाउस कैप्टन. हम ग्रीन हाउस में हैं और हमारी कैप्टन कौन है, विधि. मयंक इज अवर वाइस कैप्टन, और मयंक क्या है, हमारा वाइस कैप्टन. आपने क्या देखा, वी, जब हम ज़्यादा पर्सन्स की बात करते हैं तो आर आ रहा है, और नेमिंग वर्ड्स मयंक और विधि के साथ इज आया. नाउ द नेक्स्ट वन, आर यू माई अंकल. इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है कि वेनेवर यू यूज़ यू, जहाँ भी आप यू का इस्तेमाल करेंगे क्या आएगा, आर. आर यू माई अंकल. आई एम नॉट श्योर. मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ, मुझे यकीन नहीं है. आई के साथ यू वेरी वेल नो क्या आता है, एम. यू आर माई फादर्स अंकल. तुम मेरे पिता के अंकल हो. सो आपने एक्सरसाइज में क्या देखा, वी, दे, यू, इन सब के साथ आपने आर लगाया. आई के साथ आपने एम लगाया, और ही, शी, इट और नेमिंग वर्ड के साथ आपने इज लगाया. बच्चे आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा. इन दिस मैनर यू कैन फ्रेम द सेंटेंस ऑल्सो, दैट like this, I am eating mango, I am eating ice cream, I am going outside, who are you, what are you doing. So जितने सेंटेंस आप पढ़ेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा कि किस वर्ड के साथ क्या आता है, इज आता है, आर आता है या एम आता है. सो बच्चे अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करिए. 5 to 10 मिनट्स डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है, चाहे आप ये लिखा हुआ ही ट्वाइस पढ़ लीजिए, बट मेंटेन योर रीडिंग हैबिट. दिस इज द एक्सरसाइज 2 which is given in your book, column A and B, in which you have to match I, you, he, she, it, we, they, are, is, am, are, is. So this is the question. Let's solve it. Now here you can see that this is the question which I have shown you, the book page. Now this is in the form of slide. Here is exercise 2, match the column A and B, and here there are few words given, or you can say pronouns are given, and here are the linking verbs are given. So आपको pronouns को linking verb से मैच करना है. सो यू हैव टू टेक केयर. आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसके साथ क्या मैच करना है. यू कैन सी ओवर हियर आई. सो यू हैव टू फाइंड आउट इन कॉलम बी कि आप आई को किससे मैच करेंगे. सो आई विल मैच विद एम. यू कैन से सी आई विल मैच विद एम. आई किससे मैच हो गया, एम से. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज यू. अगेन यू हैव टू सी इन कॉलम बी, और आप क्या देखेंगे, यू किसके साथ मैच होता है, यू विल मैच विद आर. यू किससे मैच हो गया, आर से. नाउ द थर्ड वर्ड इज ही, एंड वी विल मैच ही विद इज.
ही किससे मैच हो गया? इज से। ही के साथ क्या आता है? इज। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सी। शी के साथ आएगा इज। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इट। Here is it, or it also match with is. Now the next word is they. They will match with are. They किससे मैच हुआ? are से. Next word we, and we will match with are. I hope you understand. I के साथ m आएगा. you, they, we के साथ are आएगा. he, she, it के साथ is आएगा. So you are able to do these words in the form of fill in the blanks. आप इनको fill in the blanks की फॉर्म में भी कर सकते हैं अब, और अब आप मैच भी कर सकते हैं. I hope all of you understand. आप सबको समझ आया होगा. Now it's the time for homework. Now there is a verbs worksheet in which you have to fill is, are, am. ये तीनों ही आपको फिल करने हैं. is, are, am. Complete the sentences with correct verb. आपको ये सेंटेंस करनी है कंप्लीट ये करेक्ट लिंकिंग वर्ब्स की फॉर्म से. आई एम गिविंग यू 10 सेंटेंस एंड यू हैव टू डू दिस सेंटेंस इन द नोटबुक. यू आर ब्यूटिफुल. ओके, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू कि यू के साथ आर आएगा, बाकी आपको खुद करने हैं. टिम एंड टीना डैश मैरिड. इट डैश रेनी. आई डैश केविन. ही डैश हैप्पी. I late. It dash cold. She dash journalist. We dash in the school. She dash taller than me. So you have to fill is, am, are. Is, are, am in the particular worksheet. I hope you understand. Now it's the time for homework solution of the previous lecture. In the previous lecture, I gave you frame sentences using the doing words which you are use in school. Which you use in school. जो words आप school में use करते हो उनके आपको 10 sentences बनाने हैं. Suppose play. I play in the playground. मैं playground में खेलता हूँ. रीड. आई विल रीड लेसन ऑफ इंग्लिश. मैं इंग्लिश का लेसन पढ़ूँगा. राइट. स्टूडेंट्स राइट देयर क्लास वर्क. स्टूडेंट अपना क्लास वर्क लिख रहे हैं आएगा तो ING आएगा. स्टूडेंट अपना क्लास वर्क जो क्लास में काम हो रहा है वो कर रहे हैं. आई विल ईट माई लंच. मैं अपना लंच खाऊँगा. आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड. मैं प्लेग्राउंड में खेला. आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई बॉटल. ड्रॉ. आई ड्रॉ अ बर्ड. रिसाइट. टुडे आई रिसाइट अ पोएम. आज मैं एक पोएम सुनाऊंगा. डांस. वी डांस इन द डांस रूम. हम डांस रूम में डांस करते हैं. सिंग. वी सिंग अ सॉन्ग. सॉल्व. वी कैन सॉल्व ईजी सम्स. हम ईजी सम्स सॉल्व कर सकते हैं. I hope you understand and all of you have done your work. आप लोगों ने भी अपना काम कर लिया होगा. You can check your work from the solution and if your words are different, doesn't matter, I will go through it. Now, in the end, I would like to say that please send your homework on mails. First, go through the lecture. बच्चे पहले लेक्चर देखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइजेस कीजिए एंड देन ओनली यू आर एबल टू डू द होमवर्क. अगर आप लेक्चर नहीं देखेंगे तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द थिंग्स. नाउ द लेक्चर्स आर विच आर अवेलेबल ऑन एडक्वाक वेबसाइट. आपको जो पता है एडक्वाक याहू पे आपका जो पर्टिकुलर लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं दोज लेक्चर्स आर अवेलेबल ओवर देयर एंड यू कैन गो थ्रू द लेक्चर अकॉर्डिंगली. And your homework is available on Adcock website. You can see the homework from that only and we are sending the screenshot on WhatsApp group also. So you have to do the work accordingly. I think
you understand the helping verbs which are is, am, are, and how we use is, are, am. We just discuss in this lecture. हमने ये सब इस लेक्चर में डिस्कस किया. आप भी एक बार अपनी बुक को पढ़िए और लेक्चर को दोबारा सुनिए, and then only you are able to do your work. If any queries, you can ask me anytime. You are welcome to ask any question at any time. I hope you understand this lecture. Now, thank you. Have a good day.